اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ مسلمان ایک عظیم جنگی طاقت بن گئے تھے، لیکن اسلام کا فروغ اس جنگی طاقت کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ اسلام میں ایسی کشش تھی کہ جو کوئی بھی اللہ کا یہ پیغام سنتا وہ اسلام قبول کر لیتا۔ مسلمانوں نے اپنے جاسوس دور دور تک پھیلا رکھے تھے۔ 630 عیسوی میں جاسوسوں نے مدینے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ رومی شام میں فوج کا بہت بڑا اجتماع کر رہے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں سے ٹکر لینا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ اطلاع ملی کہ رومیوں نے اپنی فوج کے کچھ دستے اردن بھیج دیے ہیں۔ اکتوبر 630 عیسوی بڑا ہی گرم مہینہ تھا۔ جھلسا دینے والی لو ہر وقت چلتی رہتی اور دن کے وقت دھوپ میں ذرا سی دیر ٹھہرنا بھی محال تھا۔ اس موسم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بیشتر اس کے کہ رومی ہم پر یلغار کریں، ہم ان کے کوچ سے پہلے ہی ان کا راستہ روک لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر مدینہ کے اسلام دشمن عناصر حرکت میں آ گئے۔ ان میں وہ مسلمان بھی شامل تھے جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن اندر سے وہ کافر تھے۔ ان منافقین نے درپردہ ان مسلمانوں کو جو جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے تھے ورغلانا اور ڈرانا شروع کر دیا کہ اس موسم میں انہوں نے کوچ کیا تو گرمی کی شدت اور پانی کی قلت سے وہ راستے میں ہی مر جائیں گے۔ ان مخالفانہ سرگرمیوں میں یہودی پیش تھے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاریوں میں زیادہ وقت ضائع نہ کیا۔ اکتوبر کے آخر میں جو فوج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کوچ کے لیے تیار ہوئی، اس کی تعداد 30,000 تھی، جس میں 10,000 سوار شامل تھے۔ مجاہدین کے اس لشکر میں مدینے کے علاوہ مکہ کے اور ان قبائل کے افراد بھی شامل تھے جنہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مجاہدین کا مقابلہ اس زمانے کے مشہور جنگجو بازنطینی شہنشاہ ہرقل کے ساتھ تھا۔ مجاہدین اسلام کا یہ عظیم لشکر اکتوبر 630 عیسوی کے آخری ہفتے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں شام کی طرف کوچ کر گیا۔ تمازت آفتاب کا یہ عالم جیسے زمین شعلے اگل رہی ہو۔ ریت اتنی گرم کہ گھوڑے اور اونٹوں کے پاؤں جلتے تھے۔ اس سال قحط کی کیفیت بھی پیدا ہو گئی تھی، اس لیے مجاہدین کے پاس خوراک کی کمی تھی۔ مجاہدین اس جھلسا دینے والی گرمی میں پانی نہیں پیتے تھے کہ معلوم نہیں آگے کتنی دور جا کر پانی ملے۔ تھوڑی ہی دور جا کر مجاہدین کے ہونٹ خشک ہو گئے اور ان کے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے، لیکن ان کی زبان پر اللہ کا نام تھا اور وہ ایسے عزم سے سرشار تھے جس کا اجر خدا کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ ایک لگن تھی، ایک جذبہ تھا کہ مجاہدین زمین و آسمان کے اگلے ہوئے شعلوں کا منہ چڑھاتے چلے جا رہے تھے۔ تقریباً 14 روز کے بعد یہ لشکر شام کی سرحد کے ساتھ تبوک کے مقام پر پہنچ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اچھے اور خوشگوار موسم میں مدینہ سے تبوک کا سفر 14 دنوں کا تھا، جسے اس وقت کے مسافروں کی زبان میں 14 منزل کہا جاتا تھا۔ بعض مورخین نے 14 منزل کو 14 دن کہا ہے۔ تبوک میں ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ رومیوں کے جو دستے اردن میں آئے تھے وہ اس وقت دمشق میں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو تبوک میں خیمہ زن ہونے کا حکم دیا اور تمام سالاروں کو صلاح و مشورے کے لیے طلب کیا۔ سب کو یہی توقع تھی کہ تبوک سے کوچ کا حکم ملے گا اور دمشق میں یا دمشق سے کچھ ادھر رومیوں کے ساتھ فیصلہ کن مارکا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصول کے مطابق سب سے مشورے طلب کیے۔ ہر سالار نے یہ ذہن میں رکھ کے کہ رومیوں سے جنگ ہوگی مشورے دیے، لیکن رسول اللہ نے یہ کہہ کر سب کو حیرت میں ڈال دیا کہ تبوک سے آگے کوئی کوچ نہیں کرے گا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے میں کہ آگے نہیں بڑھا جائے گا بہت بڑی جنگی دانش مندی تھی۔ آپ علیہ السلام نے مدینے میں ہی کہہ دیا تھا کہ رومیوں کا راستہ روکا جائے۔ آپ علیہ السلام مستقر سے اتنی دور اور اتنی شدید گرمی میں لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے بجائے آپ علیہ السلام ہرقل کو اشتعال دلا رہے تھے کہ وہ اپنے مستقر سے دور تبوک میں آ کر لڑے۔ مجاہدین لڑنے کے لیے گئے تھے، ان کے دلوں میں کوئی وہم اور کوئی خوف نہیں تھا، لیکن جنگ میں ایک خاص قسم کی عقل و دانش کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل و دانش کو استعمال کیا اور مدینے کی طرف رومیوں کا راستہ روکنے کا یہ اہتمام کیا کہ اس علاقے میں جو قبائل رومیوں کے زیر اثر تھے انہیں اپنے اثر میں لانے کی مہمات تیار کی۔ ان میں 4 مقامات خصوصی اہمیت کے حامل ہیں جہاں ان مہمات کو بھیجا جانا تھا۔ ان میں ایک تو عقبہ تھا،
जो उस दौर में एला कहलाता था। दूसरा मकाम मुकन्नना, तीसरा अज़रुह और चौथा जरबा था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम कबाइल के साथ जंग करने की बजाय दोस्ती के मुआहदे की शराइत भेजी, जिनमें एक ये थी कि उन कबाइल के जो लोग इस्लाम कबूल नहीं करेंगे उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ जंग में नहीं ले जाया जाएगा। दूसरी शर्त ये थी कि उन पर कोई भी हमला करेगा तो मुसलमान उनके दिफा को अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। उसके बदले में इस्लामी हुकूमत उनसे जिज़िया वसूल करेगी। सबसे पहले इला के फरमारवा यूहन्ना ने खुद आकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्ती की पेशकश कबूल की और जिज़िये की बाकायदा अदायगी की शर्त भी कबूल की। उसके फौरन बाद दो और ताकतवर कबीलों ने भी मुसलमानों के साथ दोस्ती का मुआहदा कर लिया और जिज़िये की शर्त भी मान ली। अल जौफ एक मकाम है जो उस दौर में दौमतुल जंदल कहलाता था। ये बड़े ही खौफनाक सहरा में वाक़ था। उस जमाने की तहरीरों से पता चलता है कि उस मकाम के इर्द गिर्द ऐसे रेतीले टीले और नशेब थे कि उन्हें नाकाबिल तस्खीर समझा जाता था। दौमतुल जंदल का हुक्मरान उकेदर बिन मालिक था। चूंकि उसकी बादशाही इंतहाई दुश्वार गुजार इलाके में थी, इसलिए वो अपने इलाके को नाकाबिल तस्खीर समझता था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वफ्द उकेदर बिन मालिक के पास भेजा था वो ये जवाब लेकर आया कि उकेदर ने न दोस्ती कबूल की है न वो जिज़िया देने पे आमादा हुआ है, बल्कि उसने एलानिया कहा है कि मुसलमानों को वो अपना दुश्मन समझता है और वो इस्लाम की बेखुनी में कोई कसर उठा नहीं रखेगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और उन्हें कहा कि वो 400 सवार अपने साथ लें और उकेदर बिन मालिक को जिंदा पकड़ लाएं। उकेदर बिन मालिक अपने दरबार में ऊंची मसनद पर बैठा था। उसके पीछे दो नीम बरहना लड़कियां खड़ी मोरछल हिला रही थीं। उकेदर बिन मालिक के चेहरे पर वही रौनक थी जो रिवायती बादशाहों के चेहरों पर हुआ करती। उसके बूढ़े वजीर ने, जो उसकी फौज का सालार भी था, उठकर कहा, ऐ इब्न मालिक, तेरी बादशाही को कभी जवाल ना आए। क्या तुझे पता नहीं चला कि ईला, जरबा, अज़रुह और मुकन्नना के कबीलों ने मदीने के मुसलमानों की दोस्ती कबूल कर ली है। आज दोस्ती कबूल की है तो कल कबीला कुरैश के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहब को भी कबूल कर लेंगे। उकेदर बिन मालिक ने कहा, क्या हमारा बुजुर्ग वजीर हमें ये मशवरा देना चाहता है कि हम भी मुसलमानों के आगे घुटने टेक दें? हम ऐसा कोई मशवरा कबूल नहीं करेंगे। बूढ़े वजीर ने कहा, नहीं इब्न मालिक, मेरी उम्र ने जो मुझे दिखाया है वो तूने अभी नहीं देखा है। मैं मानता हूँ कि तू मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तू अपने दुश्मन को इतना हकीर समझ रहा है कि तू ये भी नहीं सोच रहा कि मुसलमानों ने हमला कर दिया तो हम तुम्हारी बादशाही को किस तरह बचाएंगे। उकेदर बिन मालिक ने कहा, सलीब मुकद्दस की कसम, हमारे इर्द गिर्द का जो इलाका है वो हमारी बादशाही को बचाएगा। मेरी इस खौफनाक सहरा की रेत मुसलमानों का खून चूस लेगी। रेत और मिट्टी के जो टीले दौमतुल जंदल के इर्द गिर्द खड़े हैं, ये खुदा ने मेरे संतरी खड़े कर रखे हैं। हम पर कोई फतह नहीं पा सकता। उस वक्त खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने 400 सवारों के साथ आधा रास्ता तय कर चुके थे। अगले रोज वो उस सहरा में दाखिल हो गए जिसे मौरखों ने भी नाकाबिल तस्खीर लिखा है। मुजाहिदीन के चेहरे रेत की मानिंद खुश्क हो गए थे। घोड़ों की चाल बता रही थी कि ये मुसाफत और प्यास उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जा रही है, लेकिन खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत मुजाहिदीन के दिलों में नई रूह फूंक रही थी। दौमतुल जंदल अच्छा खासा शहर था, उसके इर्द गिर्द दीवार थी। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु उसके करीब पहुंच गए और अपने सवारों को एक वसी नशेब में छुपा दिया। मुसलमानों की जिस्मानी कैफियत ऐसी थी कि उन्हें कम से कम एक दिन और एक रात आराम करने की जरूरत थी, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सवारों को तैयारी की हालत में रखा। सूरज गुरूब हो गया, फिर रात गहरी होने लगी। चांद पूरी आबोताब से चमकने लगा। सहरा की चांदनी बड़ी शफाफ हो गई। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने एक आदमी को साथ लेकर शहर की दीवार की तरफ चल पड़े। वो जायजा लेना चाहते थे कि शहर का मुहासरा किया जाए, जिसके लिए 400 सवार काफी नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा ये कहा जा सकता था कि शहर की नाकाबंदी कर दी जाए। दूसरी सूरत यलगार की थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु दीवार के दरवाजे से खासा पीछे एक ओट में बैठ गए। चांदनी इतनी साफ थी कि दीवार के ऊपर से खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु नजर आ सकते थे। शहर का बड़ा दरवाजा खुला। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु समझे कि उकेदर फौज लेकर बाहर आ रहा है और वो उन पर हमला करेगा, लेकिन उकेदर के पीछे पीछे चंद सवार बाहर निकले और दरवाजा बंद हो गया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को याद आया कि तबूक से रवानगी के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा था कि उकेदर तुम्हें शायद शिकार खेलता हुआ मिलेगा। उकेदर बिन मालिक के मुतालिक मशहूर था कि वो जैसे शिकार खेलने के लिए ही पैदा हुआ था। सहरा में शिकार रात को मिलता था, क्योंकि दिन के वक्त जानवर दुबके छुपे रहते।
पूरे चांद की रात बड़े शिकार के लिए मौजू समझी जाती थी। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंटेलिजेंस का कमाल था कि आप अलैहिस्सलाम ने दुश्मन की आदत और खसलतों का भी पता चला लिया और आप अलैहिस्सलाम ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को उकैदर के मुताल्लिक पूरी मालूमात दे दी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब देखा कि उकैदर बिन मालिक चंद एक सवारों के साथ बाहर आया है तो उन्होंने उसके अंदाज का पूरी तरह जायजा लिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु समझ गए कि उकैदर को मालूम ही नहीं हो सका कि 400 मुसलमान सवार उसके शहर के करीब पहुंच गए हैं और वो शिकार खेलने जा रहा है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने आदमी के साथ रेंगते सरकते पीछे आए। जब उकैदर अपने सवारों के साथ नजरों से ओझल हो गया तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु दौड़कर अपने सवारों तक पहुंचे। उन्हीं ने कुछ सवार मुंतखब किए। अपने तमाम सवारों को उन्होंने तैयारी की हालत में रखा हुआ था। वो सवारों के एक जैश को अपनी क़यादत में उस तरफ ले गए जिधर उकैदर गया था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये ख्याल रखा कि उकैदर शहर से इतना आगे चला जाए कि जब उस पर हमला हो तो शहर तक उसकी आवाज भी न पहुंच सके। रात के सन्नाटे में इतने ज्यादा घोड़ों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता था। उकैदर और उसके साथियों को पता चल गया था कि उनके पीछे घुड़सवार आ रहे हैं। उकैदर का भाई हसन भी उसके साथ था। उसने कहा कि वो जाके देखता है कि ये कौन है। उसने अपना घोड़ा पीछे को मोड़ा ही था कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सवारों को हल्ला बोलने का हुक्म दे दिया। उकैदर को खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके सवारों की ललकार से पता चला कि ये मुसलमान है। उकैदर के भाई हसन ने बर्छी से मुकाबला करने की कोशिश की लेकिन मारा गया। उकैदर अपने सवारों से जरा अलग था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और रुख उकैदर की तरफ कर लिया। उकैदर ऐसा बौखलाया कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु पर वार करने की बजाय उसने रास्ते से हटने की कोशिश की। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस पर किसी हथियार से वार न किया, न घोड़े की रफ्तार कम की। उन्होंने घोड़ा उकैदर के घोड़े के करीब से गुजारा और बाजू उकैदर की कमर में डालकर उसे उसके घोड़े से उठाकर अपने साथ ही ले गए। उकैदर बिन मालिक के शिकारी साथियों और मुहाफिजों ने देखा कि उनका फरमरवा पकड़ा गया है और उसका भाई मारा गया है तो उन्होंने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के सवारों का मुकाबला करने की बजाय भाग निकलने का रास्ता देखा। वो जमीन ऐसी थी कि छुपकर निकल जाने के लिए नशेब, खड्ड और टीले बहुत थे। उनमें से कुछ जख्मी हुए लेकिन निकल गए। शहर में दाखिल होकर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उकैदर को पकड़े रखा और कुछ दूर जाकर घोड़ा रोका। उकैदर से कहा कि उसके भाग निकलने की कोई सूरत नहीं। उन्होंने उसे घोड़े से उतारा और खुद भी उतरे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या तुम अपने आप को नाकाबिल तस्खीर समझते थे? वो बोला, हाँ मैं अपने आप को नाकाबिल तस्खीर समझता था, लेकिन तूने मुझे अपना नाम नहीं बताया। वो बोले, खालिद बिन वलीद। उकैदर ने कहा, हाँ मैंने ये नाम सुना है, यहाँ तक खालिद ही पहुँच सकता था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, नहीं उकैदर, यहाँ तक हर वो इंसान पहुँच सकता था जिसके दिल में अल्लाह का नाम है और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानता है। उकैदर ने पूछा, मेरे साथ क्या सलूक होगा? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तेरे साथ वो सलूक नहीं होगा जो तूने हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलची के साथ किया था। हमसे अच्छे सलूक की तवक्को रख इब्न मालिक। अगर हम रूमी होते और हरकल के भेजे हुए होते तो हम कहते कि अपना खजाना और अपने शहर की खूबसूरत लड़कियां और शराब के मटके हमारे हवाले करते। पहले हम ऐशो इशरत करते, फिर हरकल के हुक्म की तामील करते। उकैदर ने कहा, हाँ रूमी होते तो ऐसा ही करते और वो ऐसा कर रहे हैं। वो कौन सा तोहफा है जो मैं हरकल को नहीं भेजता? वलीद के बेटे, मुझ पर लाजिम है कि रूमियों को खुश रखूं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, कहाँ है रूमी? क्या तू उन्हें मदद के लिए बुला सकता है? हम तेरी मदद को आएंगे। मैं तुझे कैदी बनाकर नहीं, मुअज़्ज़ज़ मेहमान बनाकर अल्लाह के रसूल के पास ले जा रहा हूँ। तुझ पर कोई जुल्म नहीं होगा, जबर नहीं होगा। हम दुश्मनी का नहीं, दोस्ती का पैगाम लेकर आए हैं। हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर तुझे तासुफ होगा कि जिसका तू दुश्मन रहा है वो तो दोस्ती के काबिल है। उकैदर बिन मालिक की जैसे जबान गुंग हो गई, उसने कुछ भी न कहा। उसका घोड़ा वहीं कहीं आवारा फिर रहा था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सवारों से कहा कि उकैदर के घोड़े को पकड़ लाएं। सवार घोड़े को पकड़ लाए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उकैदर को घोड़े पर सवार किया और तबूक वापसी का हुक्म दे दिया। तबूक पहुंचकर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उकैदर बिन मालिक को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पेश किया। आप अलैहिस्सलाम ने उसके आगे अपनी शर्तें रखी, लेकिन ऐसी शर्त का इशारा तक न किया कि वो इस्लाम कबूल कर ले। उसके साथ मेहमानों जैसा सलूक किया गया, उस पर कोई खौफ तारी न किया गया। उसे यही एक शर्त बहुत अच्छी लगी कि मुसलमान उसकी हिफाजत करेंगे। उसने जिजिया देने की शर्त मान ली और दोस्ती का मुआहिदा कर लिया। मुआहिदा करके उसने कहा, बेशक सिर्फ मुसलमान हैं जो मेरी मदद को पहुंच सकते हैं।
जब उकैदर बिन मालिक ने भी दोस्ती का मुआहिदा करके मुसलमानों को जिजिया देना कबूल कर लिया तो कई और छोटे छोटे कबीलों के सरदार तबूक में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और इताअत कबूल कर ली। इस तरह दूर दूर तक के इलाके मुसलमानों के ज़ेरे असर आ गए और तमाम कबायली मुसलमानों के इत्तेहादी बन गए। उनमें मुतअद्दिद कबाइल ने इस्लाम कबूल किया। अब रूमियों से जंग की जरूरत नहीं थी, उनकी पेशकदमी का रास्ता रुक गया था, बल्कि हरकल के लिए खतरा पैदा हो गया था कि वो मुसलमानों से टक्कर लेने को आगे बढ़ा तो रास्ते के तमाम कबाइल उसे अपने इलाके में ही खत्म कर देंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन के लश्कर को मदीने को वापसी का हुक्म दे दिया। ये लश्कर दिसंबर 630 ईस्वी में मदीने पहुंच गया। इस्लाम अकीदे के लिहाज से और अस्करी लिहाज से भी एक ऐसी ताकत बन चुका था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए एलची कहीं भी चले जाते उन्हें शाही मेहमान समझा जाता और उनका पैगाम एहतराम से सुना जाता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर दराज के कबीलों और छोटी बड़ी हुकूमतों को कबूल इस्लाम के दावतनामे भेजने शुरू कर दिए। इनमें पास सरदार, सरकश, खुदसर और कम फहम थे। उनकी तरफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इस किस्म का होता था कि कबूल इस्लाम की बजाय अगर वो अपनी जंगी ताकत आजमाना चाहते हैं तो आजमा लें और ये सोच लें कि शिकस्त की सूरत में उन्हें मुसलमानों का मुकम्मल तौर पर मुती होना पड़ेगा और उनकी कोई शर्त कबूल नहीं की जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी एक मुहिम खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ेरे कमान यमन के शुमाल में नजरान भेजी। वहाँ कबीला बनु हारिस बिन काब आबाद था। उन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम का मजाक उड़ाया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु मुजाहिदीन के एक सवार दस्ते को जिसकी तादाद 400 थी साथ लेकर जुलाई 630 ईस्वी में यमन को रवाना हुए। मशहूर मौरिख इब्न हिशाम ने लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, उन्हें हमले के लिए नहीं भेजा जा रहा बल्कि वो पैगाम लेकर जा रहे हैं। क्योंकि बनु हारिसा सरकश ज़हनियत की वजह से किसी खुशफहमी में मुब्तला है, इसलिए खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उन्हें 3 बार कहें कि वो इस्लाम कबूल करें। अगर वो सरकशी से बाज ना आए और खूरेजी को पसंद करें तो उन्हें खूरेजी के लिए ललकारा जाए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जिस जारहाना अंदाज से वहां पहुंचे और जिस अंदाज से उन्होंने बनु हारिसा बिन काब को कबूल इस्लाम की दावत दी, उसने मतलूबा असर दिखाया। उस कबीले ने बिला हिल हुज्जत इस्लाम कबूल कर लिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु वापस आने के बजाय वहीं रुके रहे और उन्हें इस्लाम के उसूल और अरकान समझाते रहे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जिन्हें तारीख ने फन हर्ब ज़र्ब का माहिर और सफ़े अव्वल का सालार तस्लीम किया है, नजरान में 6 महीने मुबल्लिग और मुअल्लिम बने रहे। उन्होंने जब देखा कि इस्लाम उन लोगों के दिलों में उतर गया है तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जनवरी 632 ईस्वी में वापस आ गए। उनके साथ बनु हारिसा के चंद एक सरकर्दा अफराद थे जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत की। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से एक को अमीर मुकर्रर किया। इस्लाम के दुश्मनों ने जब देखा कि मुसलमानों को मैदान जंग में शिकस्त देना मुमकिन नहीं रहा और ये भी देखा कि इस्लाम लोगों के दिलों में उतर गया है तो उन्होंने इस्लाम को नुकसान पहुंचाने का एक और तरीका इख्तियार किया। ये था रिसालत और नबुव्वत का दावा। मुतअद्दिद अफराद ने नबुव्वत का दावा किया जिनमें बनी असद का तुलैहा, बनी हनीफा का मुसलमा और यमन का असवद अंसी खास तौर पर काबिल जिक्र है। उसका नाम अकीला बिन काब था। क्योंकि उसका रंग काला था इसलिए वो असवद के नाम से मशहूर हुआ। असवद अरबी में काले को कहते हैं। वो यमन के मगरबी इलाके के एक कबीले अंस का सरदार था, इसलिए उसे असवद अल अंसी कहते थे। तारीख में उसका यही नाम आया है। वो इबादत गाह का काहिन भी रह चुका था। बिल्कुल स्याह रंगत के बावजूद उसमें ऐसी कशिश थी कि लोग उसके हल्के से इशारे का भी असर कबूल कर लेते। उसमें मकनातीस जैसी कुव्वत थी कि औरतें उसके काले चेहरे को नापसंद करने के बजाय उसके करीब होने की कोशिश करती। उसने ये पुरस्कारियत इबादत गाह में हासिल की थी। काहिन को लोग देवताओं का मंसूर नजर और एलची समझते थे। उस इलाके के ज्यादातर लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। असवद के अपने कबीले में इस्लाम दाखिल हो चुका था, लेकिन असवद ने उनके खिलाफ कभी कोई बात नहीं की, जैसे उन लोगों के साथ उसका कोई ताल्लुक ही न हो। बाज़ मौरखीन ने लिखा है कि वो खुद भी मुसलमान हो गया था। उस वक्त यमन का हुक्मरान बाज़ान नाम का एक ईरानी था। इस्लामिक शो के स्टेटस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।